तो हम लोग बात किए थे लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया का, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे अभी तक। यहाँ पे स्टार्टअप प्लेस क्रूशियल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें बोला जा रहा है जैसे कि एड स्पेंडिंग हो गया। सोशल मीडिया एंड स्पेंडिंग इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच 863 million in 2021, right? Role in startup, critical driver for the startup boom, optimizing marketing strategies. Platforms like Facebook, Twitter, Instagram provide data to reach potential customers and reduce marketing cost. Growth in new technology, technology utilization. Entrepreneurs use technology to create apps, website for brand awareness. E-commerce growth, जैसे कि India's e-commerce market continues to grow, becoming the 8th largest with a turnover of 50 billion in 2020 and projected sales of 56.6 billion in 2021. Micro influencers driving sales. Trust factor. Consumers trust word of mouth recommendations. Role of micro influencers. Ordinary people generating specific content to promote products essential for business with limited budgets. Next is growth of entrepreneur communities. Networking, जिसमें communities of like-minded people from the same industries is there. Benefit knowledge sharing, valuable tips, staying updated on trend, solving business issues, skill development, business opportunities and idea generations. These are covered over there, right? नेक्स्ट आ जा रहा है क्या, आइडिया टू एक्शंस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं इसी के साथ, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जहाँ पे टाइम देना होगा, जहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, मैं बताते रहूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ बिजनेस प्लान, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर अ बिजनेस। बिजनेस आइडियाज मस्ट बी इनोवेटिव, फिजिबल, वायबल एंड स्केलेबल। टीम में क्या आ जाएगा, नीड रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आप रीड करेंगे मेरे साथ, यू आर able to understand this chapter. Resources, adequate financial, human and physical resources are essential. Business plan essential. Conduct detailed analysis through market research. Ensure all fact and figure are credible and verifiable. Consider perspective of entrepreneurs, investors, and customers. Role of business plan consultant. Assist in organizing, clarifying the business plan. Ensure the plan is practical and easy to understand. नेक्स्ट टॉपिक अगेन छोटा टॉपिक है, मोनेटाइजेशन ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योर। मोनेटाइजेशन ओवरव्यू। मोनेटाइजेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू by providing value to users. Revenue versus profit. Revenue is income, profit is revenue minus cost. Objective, provide extreme value to customer, sometimes at the expense of immediate profit. Example, Amazon's approach. Monetization in startup. Integrated monetization. Some products have built-in revenue models. Growth versus monetization, early focus on user based rather than revenue. Life cycle stage, monetization strategies vary with the product life cycle. Technology focus, some startup prioritize tech development over immediate revenue and may be acquired for their technology. Revenue planning, startups should plan when to target meaningful revenues and communicate this to investors. Guideline for product monetization. Customer experience, ensure pricing and experience drive long-term revenue. Long-term focus, prioritize sustainable long-term strategies over short-term gain. Creativity, innovate in finding unique way to monetize the product. Monetization strategy, commercialize technology, sell or license existing tech, सब्सक्रिप्शन जैसे ऑफर, रिकरिंग पेमेंट मॉडल फॉर कंटिन्यूस सर्विस, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड में नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, लाइक दैट. Commercial partnership, collaborate with the other business for mutual benefit. Bundling, combine product for a package deal, enhancing value. Next, bootstrapping for entrepreneurs. Overview of bootstrapping, definition, starting a business with minimal capital and no outside investment. Origin, the term means to achieve success independently, originally seen as impossible task. Current context refers to building a company use personal finances or operational revenues. Feature of bootstrapping, no external fundings, rely on personal savings and revenue. Provides early stage flexibility, potential for cash flow issues. Bootstrapping technique, lease equipment, avoid large upfront cost, buy used equipment, reduce initial expenses, advance payment,
secure cash flow, avoid unnecessary expenses, keep cost low, co-working spaces, cost-effective offline solution, hire interns, affordable staffing. Example of successful bootstrap companies, Dell Computer, Oracle, SAP, Microsoft, Apple, ये आप लोगों को पता ही है. एडवांटेजेस क्या है बूटस्ट्रैपिंग का? फुल कंट्रोल विद इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस, नो डेट repayment obligation, encourage prudent spending, valuable entrepreneurial experience, right to all developments and ideas, independence in decision making, avoid stress and time involved in seeking external funding, demonstrate strong financial foundation, attracting future investors. Disadvantages क्या है bootstrapping का? Limited growth potential without external fund, full financial risk on the entrepreneur, difficult to attract large investment, require managing high stress and problem solving under constraint. Stages क्या है bootstrapping का? Beginner stage, use personal savings or small investment. Customer funded stage, rely on customer revenue for operation and growth. Credit stage, seek loan or venture capital for expansion activities. Next, reason for choosing bootstrapping: lack of business planning or entrepreneurship experience, limited skill in product promotion, supplier relation, preference to avoid sharing profit with investors, desires to avoid the time and the effort of securing external fundings. बूटस्ट्रैपिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आएगा? री इन्वेस्ट प्रॉफिट, यूज अर्निंग्स टू फंड ग्रोथ, create a business plan essential for organized growth, solve real problems, ensure your product address a genuine need, seek mentorship, gain advice from experienced entrepreneurs, leverage networking, utilize personal connection for support and opportunities. तो इसी के साथ हम लोगों ने ये टॉपिक भी खत्म कर लिया, जो कि बहुत अगेन छोटा ही था, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें. ठीक है, आप लोग एक बार रीड करेंगे तो आराम से आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. अब हम लोग छोटा सा एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और एक नहीं और दो टॉपिक शायद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा. तो हम लोग अभी नेक्स्ट छोटा छोटा दो और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. बस रीड करना है, समझना है, दैट्स इट, याद नहीं करना है. 2-3 बार आप लोग रीड कर लेंगे, मेरा पढ़ाई ने मतलब मेरा कंप्लीट हो जाएगा पढ़ना, मेरे साथ आप लोग सुन ले रहे हैं. इसको सुनने के बाद आप लोग को दो तीन क्या करना है, रीड करना है, और नहीं तो मेरा वीडियो ही 2-3 बार आप लोग रिपीटेशन में देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. Blueprint of a business operations. Act as a comprehensive guide for project execution and achieving goals. Facilitate understanding, integrate technical, financial, managerial information for clarity. Monitoring tool helps management in tracking progress, estimating cost, and identifying potential profitability. Investor attraction essential for communication and communicating business objectives to potential investors and securing funding. Reason for writing a project report. क्या reason? Internal guides the founding team in executing the business plan. External में attract potential investor by demonstrating project viability. User of the project report कौन होगा? Investor हो जाएगा. Evaluate project feasibility and investment potential. Employee understand the company's mission, vision, strategic direction. Characteristic of good project report: comprehensive and analytical. Include various aspects of the project tested by experts. Economic viability. Assess the potential profitability and risk. Detailed and structured. Documents activities, feasibility, guide entrepreneurs in decision making. Investment decision tool. Provide a basis for evaluating and improving the project. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डायरेक्शन एंड प्लानिंग, एक्ट एज अ रोड मैप, आउटलाइन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, मार्केट टारगेटिंग, फोकस ऑन द टारगेट मार्केट एंड कंपेटिटिव पोजीशनिंग. Next, business strategy. Develop and support a powerful business strategy. Investment analysis. Assess investment proposals for profitability and risk. Project approval required for registrations and approval from various authorities. Tracking and visibility. Monitors project activities progress and enhancing clarity and risk management. तो देख रहे हैं आप, क्या है इसका? कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है इन सेंस कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस है, आप लोग एक बार सुन लेंगे, उसके बाद अपने खुद अपने वर्ड में भी अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. ये टॉपिक कोई लॉ नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही लिखना है. जस्ट एसेंस को समझना है, उस एसेंस को आप लोगों को राइटर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. जो टॉपिक है उसका एसेंस सेम रहे, बट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड, ओन सेंटेंस, राइट.
कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या कवर हो जाएगा, हेल्थ इन बजटिंग आ जाएगा, मैनेजिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग लोन्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। की कंटेंट क्या आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, बैकग्राउंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल स्टार्टअप, general information, product profile and detail, promoter information, educational and professional background, location specific detail about project location and its advantage, land and building, construction plan, cost estimates, plant and machinery requirement and alternatives, production process description and technical know-how, utilities need for water, power, etc., transport and communication, transportation logistic, raw material sources and cost of raw materials, manpower, requirement and sourcing of skilled and semi skilled workers। तो मैंने ये सब ऑनलाइन में इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कोई एज सच फिक्स्ड कोई रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड, लाइक व्हाट आर द कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। If the question asks describe the content of project report, then you should mention this point, and in this point you can explain in your own word, like for general information. So we can write up in a such a way that it contain the product profile and detail of the organizations and as well as the product they are into. So in such a way you can write up these things, right? Next is product and market. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिटेल्स, मार्केट एनालिसिस, कंपटीशन, वी नीड टू कवर अप। वर्किंग कैपिटल में क्या कवर अप करना होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स, फंड्स रिक्वायरमेंट में डिटेल ऑफ कॉस्ट ब्रेकडाउन एंड फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज स्टेप्स क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेशन का। जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए बैकग्राउंड ऑफ द प्रोमोटर एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल रहने वाला है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में साइट डिटेल्स रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, लेबर रिक्वायरमेंट रहेगा। मार्केट पोटेंशियल में एनालिसिस ऑफ डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रेटेजी रहने वाला है। कैपिटल कॉस्ट एंड फाइनेंस में एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंडिंग रहेगा। वर्किंग कैपिटल में असेसमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स में इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रहेगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में टाइमलाइन एंड प्लान फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रहने वाला है। बेनिफिट ऑफ a project report in entrepreneurship, financial support helps in obtaining loan and financial aid, risk management में identify potential risk and enable corrective action, business viability में assess the financial and economic soundness of the business रहेगा। operational guide में serve as a road map for effective project management and execution रहने वाला है। these are the benefit। अब एक छोटा सा टॉपिक और खत्म करते हैं और आज के साथ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर है और स्टार्टअप फंडिंग फॉर इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल, जो हम लोगों का 2047 का जो एम है, विकसित भारत 2047, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है उसके ऊपर ही हमारी डिस्कशन है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सॉरी, विकसित भारत में नहीं है वो, विकसित भारत तो और एक चीज है, बट यहाँ पे जो हम लोगों का गोल था इकोनॉमी बाई 2024 इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर है। So India's aspiration था to become 5 trillion economy by 2024 and India needs to expand entrepreneurial activities, particularly startups. Importance of funding में critical for product development, manufacturing, marketing and other business operation. Type of startup financing, founders funding versus external funding to scale and grow. Now funding need for startup. इसके अंदर कैश फ्लो चैलेंजेस आएगा, क्यों फाइंडिंग चाहिए स्टार्टअप को, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि फंडिंग क्यों चाहिए स्टार्टअप को। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि इसके लिए फंडिंग चाहिए। रिक्वायरमेंट पहले बोला जाएगा, टू मीट ऑपरेशनल नीड लाइक परचेजिंग, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। सॉल्यूशन क्या है, बूटस्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, बैंक क्रेडिट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, नीड में प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज एसेट। सॉल्यूशन में क्या आएगा, लीजिंग, परचेजिंग एज नेसेसरी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में रिक्वायरमेंट में आएगा फंड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। स्टेज वाइज सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आएगा, आइडिया जनरेशन। सोर्सेज में लिमिटेड, यूजुअली इनफॉर्मल लाइक पर्सनल सेविंग्स और स्मॉल ग्रांट आएगा। प्री सीड स्टेज में बूटस्ट्रैपिंग, यूजिंग पर्सनल सेविंग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ट्रस्टेड एंड इनफॉर्मल। पिचिंग इवेंट्स हो सकता है, प्राइज मनी हो सकता है जहाँ पे ग्रांट होगा। नेक्स्ट इज वैलिडेशन स्टेज, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कंडक्ट ट्रायल्स एंड वैलिडेट डिमांड। सीड स्टेज में क्या होगा, इंक्यूबेटर्स रहेगा जहाँ पे ऑफर करेगा ग्रांट, इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या आएगा, लो कॉस्ट लोन आएगा, जिसमें एग्जांपल स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। एंजल इन्वेस्टर में इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम इंडिविजुअल्स। क्राउड फंडिंग में रेज्ड स्मॉल अमाउंट फ्रॉम मेनी पीपल आउटलाइन। अर्ली ट्रैक्शन में सीरीज ऑफ फंडिंग टू एक्सपेंड यूजर बेस एंड मार्केट रीच कवर अप होगा। वेंचर कैपिटल में क्या होगा, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, बैंक्स, एनबीएफसी में फॉर्मर डेब्ट
फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंशन कवर अप हो जाएगा। वेंचर डेट फंड में डेट इन्वेस्टमेंट ऑफन एलोंगसाइड वीसी फंडिंग कवर अप हो जाएगा। स्केलिंग स्टेज के अंदर क्या आएगा, लार्ज वीसी फंड फॉर हाई ग्रोथ स्टार्टअप। प्राइवेट इक्विटी में फॉर लेट स्टेज एंड फास्ट फंडिंग स्टार्टअप कवर हो जाएगा। स्टेप क्या आएगा तो स्टार्टअप फंड राइजिंग में असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाई फंडिंग इज नीडेड एंड हाउ मच। प्लानिंग में डेवलप अ माइलस्टोन बेस्ड फाइनेंशियल फोरकास्ट। एग्जीक्यूशन में अप्रोच इन्वेस्टर्स विद सॉलिड बिजनेस प्लान कवर अप हो जाएगा। मेथड क्या आएगा स्टार्टअप फाइनेंसिंग का, सेल्फ फंडिंग हो सकता है जिसमें एडवांटेजेस क्या है, नो रिपेमेंट प्रेशर, मेंटेन्स कंट्रोल। मेथड क्या होगा, सेविंग्स हो सकता है, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, लीजिंग हो सकता है। क्राउड फंडिंग में क्या होगा, प्रोसेस डिस्क्राइब बिजनेस आउटलाइन एंड रेज स्मॉल कंट्रीब्यूटर्स लाइक प्लेटफॉर्म लाइक किक स्टार्टर हो गया, इंडी गोगो इन द यूएस हो गया, किटो हो गया, विचबेरी इन इंडिया हो गया। एंजल फाइनेंसिंग में क्या होता है, इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कैपिटल एंड मेंटोरशिप, इक्विटी इन रिटर्न होता है, इसमें एक्सपेक्टेशन में हायर रिस्क होता है बट पोटेंशियल रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड में यूसेज क्विक एक्सेस टू फंड होगा, बी वारी ऑफ हाई इंटरेस्ट होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली बेनिफिट में इजी टू रेज स्मॉल फंड विद फ्लेक्सिबल टर्म्स। वेंचर कैपिटल में स्कोप में इन्वेस्टमेंट इन हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज फॉर इक्विटी। इंक्यूबेटर एंड एक्सेलेरेटर में सपोर्ट में मेंटरशिप फंडिंग नेटवर्किंग फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप आ जाएगा। कंटेस्ट में अपॉर्चुनिटी में विनिंग बिजनेस ऑफ कंपिटिटर्स, कंपिटिशन फॉर फंडिंग होगा। बैंक लोन टाइप्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, प्रोजेक्ट फंडिंग आ जाएगा। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में टारगेट क्या रहने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट क्वालिफाई फॉर बैंक लोन्स। गवर्नमेंट असिस्टेंस में प्रोग्राम्स, स्टार्टअप फंड आएगा, सीड बी फंड आएगा एंड अदर स्कीम कवर अप हो जाएगा। प्रोडक्ट प्री सेल में मेथड में सेलिंग प्रोडक्ट बिफोर लॉन्च टू रेज फंड कवर अप होगा। सेलिंग एसेट में क्या कवर होगा, पर्पस जैसे कि जनरेट शॉर्ट टर्म फंड्स। क्रेडिट कार्ड जिसमें बोला जा रहा है कंसिडरेशन में क्विक फंड आएगा बट रिस्क ऑफ हाई इंटरेस्ट रहने वाला है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो हम लोगों ने टैक्स में भी देखा है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीड बी फंड हो गया, फंड हो गया, स्कोप में क्या बोला जा रहा है, प्रोवाइड कैपिटल थ्रू सेबी रजिस्टर्ड AIF, दैट इज ऑल्टरनेटिव। इम्पैक्ट क्या आएगा, बूट स्ट्रैपिंग विथ हाई पोटेंशियल होता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड कमर्शलाइजेशन। रीच सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इनक्यूबेटर्स कवर अप हो जाएगा। क्राउड फंडिंग टाइप में क्या कवर होगा, डोनेशन बेस्ड जिसमें कंट्रीब्यूटर्स रिसीव पार्क्स बट नो इक्विटी। इन्वेस्टमेंट बेस्ड में इन्वेस्टर्स गेन्स इक्विटी और डेट आ जाएगा। एडवांटेजेस, मार्केटिंग टूल, रीच पोटेंशियल कस्टमर्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में वैलिडेट बिजनेस आइडियाज अर्ली, लो रिस्क में लेस फाइनेंशियल एंड मार्केट एंट्री रिस्क। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या कवर होगा, इनफ्लेक्सिबल कैंपेन टर्म्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड पोस्ट लॉन्च, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड प्लानिंग एंड रिस्क ऑफ आइडिया थेट, पब्लिक एक्सपोजर में लीड टू कॉपी। तो ये इसके साथ हम लोगों का क्या ये वाला टॉपिक भी खत्म हो रहा है। इसको आप लोगों को क्या करना है, बस एक बार रीड करना है, जस्ट रीड इट एंड आई थिंक इट विल बी एनफ फॉर यू। क्योंकि इसको मतलब याद मत करने जाना, इसके अंदर कोई एज सच थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस पूछ सकता है, क्या पर्पस है, क्या सॉल्यूशन है, उसके हिसाब से पूछा जा सकता है। स्टेजेस पूछ सकते हैं यहाँ से, जैसे कि प्री सीड स्टेज हो गया, वैलिडेशन स्टेज हो गया, सीड स्टेज हो गया, राइट, अर्ली ट्रैक्शन, स्केलिंग स्टेज। स्टेप्स पूछा जा सकता है, स्टेप्स भी पूछा जा सकता है। मेथड क्या क्या हो सकता है ये पूछा जा सकता है। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए and मेरा वीडियो फिर से एक बार देखिए अगर थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार देखने से अच्छा रहेगा। बट आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। आप लोग अगर ये एक बार पूरा यहाँ तक हम लोगों ने आज कवर किया है, यहाँ तक अगर हम लोग कवर किया आज, तो एक बार पूरा आप लोग यहाँ तक एक बार रीड करेंगे एंड आई थिंक आप लोगों के लिए ईजी होगा। और इसी के साथ आगे आने वाले वीडियो में भी मैं ऐसे ही करके वन बाय वन टॉपिक वाइज पूरा कवर करने वाला हूँ। होप कि आप लोगों के लिए हेल्प होगा एंड होपफुली I will cover the entire paper 20C that is entrepreneurship and startup, जिसके साथ आप लोगों का पूरा entrepreneurship and startup का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है देन यू आर एब्सोल्युटली आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के पास अगर टाइम रहा तो इंस्टीट्यूट मैट ओपन कीजिए और देखिए मैंने किस तरह से इसको समराइज किया है, किस तरह से इसको कंसाइज नोट में कन्वर्ट किया है। तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा कितना एफर्ट यहाँ पे गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि वो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट मैथ को ही फॉलो करना है, क्योंकि ये पेपर न्यू है और ये पेपर का जो दायरा है वो बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर है। तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग बस इसी को पढ़े, बट क्योंकि हम लोगों का एक सिलेबस है और हम लोग उसी सिलेबस के अंदर दायरे में रह के हम लोग को इसको कवर करना है, तो मैंने ट्राई किया इसको समराइज वे में, कंसाइज वे में इसको कंप्लीट करने का। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसा ही आगे आने वाले वीडियो में भी अच्छा लगेगा।
और आप लोग अगर मेरे ये वीडियोस पेशेंटली सुन रहे हैं, पेशेंटली समझ रहे हैं सुन के, और हेल्प हो रहा है कुछ भी, तो प्लीज डू कमेंट इन माय चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। होप कि आपको आने वाले वीडियो में भी अच्छा लगे। मेरा जो भी एक्स्ट्रा जो टॉपिक बाकी है, मैं ऐसे ही करके वन बाय वन कवर अप करते रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।